Good afternoon, my dear kids. We are back again to study English of class 4. Now, we studied nouns in the previous class, didn't we? We learned about singular nouns and plural nouns. एकवचन और बहुवचन के बारे में हमने सीखा और हमने एक्टिविटी भी किया था. याद है बच्चों? Now what we are going to do is we are going to the next lesson, a new lesson. You know, it is about magic. What magic? मैजिक वर्ड्स. शब्दों से हम मैजिक करने वाले हैं. ये मैजिक वर्ड्स क्या है बच्चों? व्हाट आर दीज मैजिक वर्ड्स? डू यू नो मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? जब भी हम ये मैजिक वर्ड्स को यानी कि ये गोल्डन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, आपके संबंध यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो मजबूत हो जाता है. इट बिकम्स वेरी वेल. ओके, सो shall I introduce you to the magic words? Are you all ready? Yes? Come. Let's come to the first magic word. Please. Please is a magic word. You know what does it mean? इसका अर्थ क्या है? कृपया. प्लीज मेरी मदद कर दो. प्लीज हेल्प मी आउट. कृपया मेरी मदद कर दो. तो जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं, whenever you are asking for a help from somebody, you have to use the word please. Please, can I use this pencil? Can I use this pen? कृपया मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ. Can I use this pencil? You can ask, ये पेंसिल मुझे दे दो. ऐसे पूछने से क्या हो रहा है? You are being very rude. Give me this pencil. If you ask like that, you're being rude. How to use magic words now? When you ask, please give me this pen. Then when you use the word please, your friend, your teacher, your parents feel happy. They understand that you need it and they can share it with you. So when you use please यानी कि कृपया, आप you're using a very kind tone, pleasant tone. Please एक magic word हो जाता है. ठीक है? Next, you know which other magic word is there? Sorry. जब आप कभी भी गलती कर बैठे, whenever you do a mistake, you use the word sorry. What does sorry mean? क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई. What is the other magic word? Sorry is a magic word. Now, what are we learning? We are learning about magic words. So, we heard about please. Next, we learned about sorry. Next, sorry का अर्थ क्या है बच्चों? Sorry, I broke this pen. Sorry, I broke this pencil. सॉरी का अर्थ क्या है? सॉरी, मैंने गलती कर दी. यू नो नो व्हेन आई डू अ मिस्टेक इन द क्लास, मे बी व्हेन आई डू अ spelling mistake or when I have not written it clearly, what do I say? Sorry children, क्षमा कर दीजिए बच्चों, मैं सही से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए. Sorry children, let me write it better. Right? When it's not legible for you, what do I use? I use sorry. Right? So you also can use sorry in your day-to-day life. How do you pronounce it? Sorry. Sorry. And this is please. Write down the spelling, kids. Next, there's another magic word. Welcome. वेलकम कब कह सकते हैं? अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, इफ एनीवन इज थैंकिंग यू, धन्यवाद कह रहे हैं, तब आप वेलकम कह सकते हैं. वेलकम का क्या अर्थ है बच्चों? स्वागत करना. तो जब कोई घर को आ रहा है, कोई घर पधार रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वेलकम कर सकते हैं. कहीं कहीं घरों पे वेलकम का साइन बोर्ड भी रहता है. तो वेलकम का अर्थ क्या है? स्वागत करना. किसी को स्वागत करना, उसके लिए वेलकम उपयोग करते हैं. वी यूज द वर्ड वेलकम. एंड एज वेल एज व्हेन समवन सेज थैंक यू, वी से वेलकम. When someone says thank you for this, then you can say welcome, no issues. तब आप welcome यूज कर सकते हैं. तो हमने क्या सीखा? दो और शब्द मैजिक वर्ड सीखे. वी लर्न वेलकम एंड वी लर्न अबाउट थैंक यू. डू यू नो देयर आर अदर टू मैजिक वर्ड्स? Shall I introduce that to you? Excuse me.
Excuse me is another magic word. Excuse me is another magic word. Excuse me कब कर सकते हैं बता? Excuse me, this is my turn. जब आप स्नीज करते हैं, when you छींकते हैं, जब आप छींकते हैं, when you sneeze, you it is polite to say excuse me. क्यों कहते हैं वो? क्योंकि आप पहले पब्लिक में छींकना अच्छी बात नहीं है. नो कोविड एंड ऑल केम अराउंड, सो इन पब्लिक यू आर नॉट सपोज टू स्नीज. इफ यू स्नीज यू हैव टू कवर योर माउथ प्रॉपरली. ओके, एंड यू से एक्सक्यूज मी. राइट बच्चों, यू से एक्सक्यूज मी यानी कि माफ करे या क्षमा करे. ठीक है बच्चों, एक्सक्यूज मी, दैट्स व्हाट इट इज. जैसे मैं व्हेन यू मिस योर होमवर्क, आपने होमवर्क नहीं किया हो तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या, मैम एक्सक्यूज मी मैम, टुडे आई डिडंट डू माय होमवर्क. यू कैन से एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आज मुझे माफ करे, मैंने होमवर्क लेके नहीं आई मैं. आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. जब आप क्लास के एंटर करते हैं, व्हेन यू एंटर अ क्लास, व्हेन यू एंटरिंग द क्लास, यू कैन यू से excuse me. Okay, like excuse me ma'am, can I come in? Excuse me ma'am, can I come in यानी कि माफ करें मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ. क्योंकि क्या होता है, टीचर आपकी क्लास लेती हो रही होगी, टीचर मैम बात कर रही होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे. अगर आप क्लास के बीचों बीच में आ गए तो क्या हो जाता है बच्चों? अगर आप क्लास के बीचों बीच आ गए तो आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना. जैसे अगर आप ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और आप क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं, तब क्या हो सकता है? आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास. So what you can do? You can say, "Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can I come in?" ठीक है बच्चों? Like that you can use excuse me. Now, the last magic word that is given in your lesson is pardon. Pardon यानी कि इसका भी अर्थ है क्षमा करें, बट इसका सही अर्थ जब कब यूज करते हैं पता है? जब कोई बात को दोबारा कहने का अनुराग करते हैं. यानी कि जब मैंने कुछ बोला, आपको वह समझ में नहीं आया, when I am telling something and you do not understand what it is, you can say pardon ma'am, pardon me ma'am. यानी कि मैम आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया. ऐसे आप बोलने के बदले मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप कहने से पहले आप ये कह सकते हैं पार्डन मी मैम. क्या कह सकते हैं बच्चों? पार्डन, पार्डन, पार्डन मी यानी कि बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना. ठीक है बच्चों, तो यह है हमारे मैजिक वर्ड्स. कौन से वर्ड्स? प्लीज, सॉरी, वेलकम, thank you, excuse me, and pardon. These are our magic words. Okay, kids, you have taken a note of them. लिख लिया आपके notebook में? Have you understood it? If yes, please say yes in the chat box. And if you have any doubts during the class, please ask the questions. I will clarify it at the end of the class. Okay? I'll clarify it at the end of the class. Okay, kids? Come on. Now we learned about 6 magic words. Now we are going to go ahead with the lesson. We are going to go ahead with the lesson. Okay, kids? Come on. Now we enter into the lesson. What is it said? The bell rings for the morning assembly. यानी कि जो सभा होती है सुबह के वक्त, when you are having assembly, कब होता है? When you go to school. When you go to the school, what happens? Your teachers ask you to assemble in the ground. जो मैदान है वहां पे assemble होने के कह रहे हैं, जैसे कि सब लोग वहां आ जाइए. That is called an assembly. सुबह की सभा होती है ना, ये किसी किसी स्कूल में, in some school the assembly is in the evening, but most of the school have the assembly have the morning assembly in the morning hours. Okay, the bell rings for the morning assembly. After the assembly, Mithi enters the classroom. Who enters the classroom? Mithi enters the classroom. Okay, so क्या हुआ? Assembly खत्म हो गया. मॉर्निंग असेंबली बेल लगने के बाद
Assembly got over, and then who entered the classroom? Meethi entered the classroom. मीठी एंटर द क्लासरूम. कहाँ पे एंटर हुई? क्लासरूम में. तो अभी हम कहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं? एवरीबडी इज इन द क्लासरूम. सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन टाइप ऑफ लेसन. This is a conversation type of lesson, just like your drawing competition lesson. Okay, kids? This is a conversation type of lesson. Okay? Now, what is the first thing? Kabir. There's a boy called Kabir. Kabir says, hello, मीठी. आप मीठी भी कह सकते हैं, मीठी भी कह सकते हैं. एज पर द प्रोनाउंसिएशन हियर इट विल बी मीठी, परंतु हिंदी में मीठी होता है ना बच्चों. तो कबीर सेज हेलो मीठी. तो मीठी क्या कहती है? व्हाट डज मीठी से? लेट्स फाइंड आउट. मीठी सेज हेलो कबीर. तो जब भी आपको whenever you have to wish anybody who is your friend, you can say hi, hello, right? So what does Kabir say? He says hello Mithi. And then what does Mithi say? Mithi says hello Kabir, how are you? You always ask, no, आप कैसे हैं? How are you? What do they ask? How are you? So what did Kabir say? Kabir said hello Meeti, and Meeti said hello Kabir. How are you? आप कैसे हो? Then what does Kabir say? Let's find out. Kabir says I am fine. I am fine. तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया? आई एम को कैसे लिखा है यहाँ पे? चलो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको. आई एम, ये है सही से शब्द. ओके. तो ए के बदले एक यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी डाल के एम लिखा है. तो इसका भी वही अर्थ है. आई एम. तो आई एम फाइन इस प्रकार लिखने के बदले इस प्रकार लिखा गया है यहाँ पे. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. आई एम ऐसे भी लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सब्स्टिट्यूट, यानी कि ए के बदले सब्स्टिट्यूट ए एंड पुट एन apostrophe. Okay? Yes, you understood what is this I am? Yeah? I am fine. Thank you. What does Kabir say? I am fine. मैं ठीक हूँ. तो क्या कह रहा है? मैं ठीक हूँ. तो I am fine. Thank you. So what is the magic word used here? That's a magic word used here. Thank you. देखो यहाँ पे एक मैजिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, थैंक यू. सो व्हाट डज कबीर से? आई एम फाइन, थैंक यू. एस्टरडे आई वॉज, एस्टरडे ऐसे नहीं कि कल. एस्टरडे आई वॉज एब्सेंट. देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. आई एम फाइन, अभी क्या बात करें? प्रेजेंट के बारे में बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट इस वक्त के बारे में. तो क्या यूज किया है? आई एम यूज किया है. और जब हमें पास्ट टेंस, जो गुजरे हुए वक्त के बारे में बात किया हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई वॉज. ठीक है. तो आई एम का जो पास्ट टेंस गुजरा वक्त होगा वो आई वॉज रहेगा. एस्टरडे आई वॉज एब्सेंट. ओके बच्चों. तो यू अंडरस्टूड. यहाँ पे देखा, यहाँ पे आई एम इज इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस वक्त अभी वो ठीक है. आई एम फाइन. तो यहाँ क्या कर रहे हैं? एस्टरडे. एस्टरडे का मतलब है कल. तो कल क्या है? कल गुजरा वक्त है. इस वक्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो कल जो गुजरा वक्त है, एस्टरडे आई वॉज एब्सेंट. तो देखा यहाँ पे जब आई एम के लिए इस जब
इस वक्त के बारे में बात करें, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? आई एम इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरे वक्त के बारे में बात करें तो क्या बात कर रहे हैं बच्चों? आई वॉज बोल रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो एस डाल दीजिए चैट बॉक्स में। बहुत खूब। जब हम whenever we are reading about anything new, we should also pay attention to the grammar in the sentence. Okay? जो grammar है, structure form है, वह उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है? So what did we learn now? We learned about how I am is represented with an apostrophe here. Please write it in your notebooks, kid, because you get to learn something new other than the lesson. Okay? Second thing, what did you learn? I am is a present tense. इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं और I was का क्या अर्थ है? I was the past tense. Okay? Now you understood that? Very good. Now we'll proceed with the lesson. I could not do my homework. क्या कह रहे हैं? I could not do my homework. वो होमवर्क नहीं कर पा रहा था। अपना जो होमवर्क है उसने नहीं किया था। I could not do my homework. Would you? Would you please? Would you please? Please is another मैजिक वर्ड। प्लीज का क्या अर्थ है बच्चों? कृपया। तो वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक? So, kids, what did you understand? This is a conversation between two people here. It is happening in a school because Mithi has entered the classroom. What do? Whenever they're teaching you anything, you have to try to understand what are they talking about. कहाँ पे बात हो रही है आपको जानना है। तो यहाँ पे असेंबली खत्म हो गया है तो सुबह का वक्त है and Mithi has entered the classroom. And what did you notice here? That Kabir is a क्लासमेट ऑफ मीठी। कबीर मीठी के साथ में एक ही क्लास में पढ़ रहा है। ओके, सो व्हाट डिड कबीर से व्हेन ही सॉ मीठी? ही सेड हेलो मीठी। एंड व्हाट डिड मीठी से इन रिटर्न? हेलो कबीर, हाउ आर यू? देन व्हाट डिड कबीर से इन रिटर्न? आई एम फाइन, थैंक यू। एस्टरडे आई वॉज एब्सेंट। तो एस्टरडे वह अनुपस्थित था, यानी कि वह क्लास नहीं आया, वह आया नहीं। तो एस्टरडे आई वाज एब्सेंट, क्लास ना आने के वजह से उसको क्या होमवर्क है पता नहीं था ना बच्चों। तो व्हाट हैपेंड, मैम ने क्या होमवर्क दिया था पता नहीं था कबीर को। तो व्हाट ही आस्क्ड, आई कुड नॉट डू माय होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर नहीं पाया। तो ही सेड आई कुड नॉट डू माय होमवर्क। वुड यू प्लीज? वुड यू प्लीज, अगेन अनदर मैजिक वर्ड, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। तो होमवर्क उन्होंने नहीं किया था, जो गृह कार्य है वह कबीर ने नहीं किया था। हो कबीर डिड नॉट डू हिज होमवर्क, कुड नॉट डू हिज होमवर्क बिकॉज ही वाज एब्सेंट एंड he asked whom for the notebook? Mithi. So would you please give me your notebook? He asked to Mithi. You understood this? Yes, very good. Now what did Mithi say in return? Let's find out. Come on. So Mithi said, व्हाट डिड मीठी से? अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे हो पाए, इफ यू आर एबल टू डू हेल्प, व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई टू डू इट। तो व्हाट डिड मीठी सेड? व्हाट डिड मूती से? ओ श्योर। ओ श्योर यानी कि ठीक है, प्लीज टेक इट। तो अगेन शी इज सेइंग अ मैजिक वर्ड, प्लीज। प्लीज टेक इट, कृपया ले लीजिए। So what did you notice here? When Kabir asked for help, he asked please. He said, please give me your notebook. So he used a magic word here. So when he used the magic word, what happened? Meeti felt happy to help Kabir. So what did Meeti said? Oh sure, please take it.
कृपया ले लीजिए करके who said? मीठी said. So see how both of them use magic words. Yeah, what were the two magic words used so far in the lesson? Thank you and please. Very good. Clap for yourself. Okay. Now, what did Kabir say in return? Let's find out. Did you know, understand till here? Shall we move on, kids? What did we learn? We learned something other than the lesson itself. क्या क्या सीखा था? I am को कैसे represent करते हैं? और we understood I am is in present tense. इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं. And I was is in the past tense. Okay? Now, shall we move on? Yes. Let's move on. Okay, very good. Now, again, Kabir is saying, thank you, Mithi. So, what is Kabir saying? He's saying, thank you. Thank you is a magic word. So, he's saying, thank you. Dhanyavad. Dhanyavad. Thank you, Mithi. So, what did Kabir say? Thank you, Mithi. Okay? So, what did Kabir say? He said, thank you. Thank you is a magic word. When someone says thank you, what do we say? We say, please tell me. Very good, very good. Yes, we say welcome. We say welcome. Welcome. So, Mithi is talking to Kabir, so she said, welcome, Kabir. So, did you see how they helped each other? Yes? एक दूसरे ने दूसरों की मदद कर ली. So, Meeti helped Kabir. Yes, what does Meeti say? Meeti said, welcome, Kabir. शुक्रिया. So, thank you. जब धन्यवाद कहा, कोई बात नहीं. Welcome, Kabir. ठीक है? So, we learned about another two magic words, which is thank you and welcome. Okay? So, what did we understand so far? That this is in a school where assembly is over and Meethi enters the class. It's before the class starts. Class शुरू होने से पहले है. Kabir was absent and he didn't do his homework. So he asked, please to whom? To Mithi. For what? To give the notebook. जो किताब है देने को कहा. और फिर मीठी ने बोला, ओ श्योर, प्लीज टेक इट. जरूर ले लीजिए, कृपया ले लीजिए. तो कबीर ने क्या कहा जब कबीर को मदद मिली? When somebody helped Kabir, what did he say? He said, thank you. And what did Meeti say in return? She said, welcome. Very good. Okay, so now that we have understood so far, let's go to the next person. Okay, Ekta. So, how many people were talking? The conversation was between Kabir and Meeti. Now, who is coming? Ekta is coming. Ekta says, excuse me. Excuse me. Why does एकता से एक्सक्यूज मी? क्यों कह रही है एक्सक्यूज मी? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? कबीर और मीठी आपस में बात कर रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग हियर? कबीर एंड मीठी आर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. आपस में बात कर रहे हैं. व्हेन यू आर इंटरप्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, किसी के जो बात कर रहे हैं, दो लोग जब बात कर रहे हैं, जब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी कहेंगे. सो व्हाई इज एकता आस्किंग एक्सक्यूज मी? लेट्स फाइंड आउट. Excuse me, is this your box? मीठी. तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या देखा आपने? क्या देखा यहाँ पे आपने कि कबीर and Meethi were having a conversation because Kabir did not come to school yesterday and he did not do his homework. So he asked the notebook from Meethi. Yes, and Kabir said thank you to Meethi and Meethi said welcome Kabir. When they were talking to each other, Ekta said excuse me. Now why did Ekta say excuse me? Let's find out. Excuse me माने क्षमा करे. एकता सेड एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी? क्या ये आपका बक्सा है, बॉक्स है? इज दिस योर बॉक्स मीठी? राइट? सो व्हाट डिड मीठी सेड? चलो लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज मीठी से.
Meethi says, yes, it is mine. जब आपसे कोई पूछा जाए, ऐसे सवाल पूछा, इज दिस योर बॉक्स, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? यस और नो। इट कैन बी अ यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इसका एक दो दो ही जवाब हो सकता है, अगर हाँ कि ना ही हो सकता है ना बच्चों। ठीक है, इज दिस योर बॉक्स मीति का दो ही जवाब हो सकता है, हाँ कि ना। तो मीठी ने क्या कहा? यस, इट इज माइन, मेरा है। ठीक है, तो व्हाट डिड एकता से? लेट्स फाइंड आउट। एकता सेज, वुड यू प्लीज शो मी, would you please show me? Again, please is a magic word. Please show me your story book. So what did Ekta ask? Ekta asked, would you please show me your storybook? So what did she say? Would you प्लीज, कृपया आप मुझे क्या दिखाना है? शो मी मतलब मुझे दिखाइए क्या? योर स्टोरी बुक। स्टोरी बुक मने जो कहानियां आपको किताब मिलते हैं ना, स्टोरी बुक, तो वह उसको पूछ रही है। कौन पूछ रही है? एकता पूछ रही है किससे? मीठी से पूछ रही है। कहानी की किताब जो स्टोरी बुक है, जो कहानियां लिखी जाती है, वह उस बुक के बारे में पूछ रही है। हु इज आस्किंग? एकता इज आस्किंग मीठी टू शो हर स्टोरी बुक। सो व्हाट डज मीठी से? लेट्स फाइंड आउट। मीठी सेज, मीठी सेज पार्डन। व्हाट डज पार्डन मीन? क्या अर्थ है पार्डन का? व्हाट डज पार्डन मीन? मैंने आपको बताया था व्हाट डज पार्डन मीन। पार्डन मीन्स व्हेन डू वी यूज पार्डन? जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ कबीर और मीति वे टॉकिंग टू ईच अदर। कबीर एंड मीति वे टॉकिंग अमंगस्ट ईच अदर। एकता केम एंड आस्क्ड, इज दिस योर बॉक्स? तो बॉक्स के बारे में बात हो रहा था। तो मीठी ने कहा, हाँ ये मेरा बॉक्स है, यस इट इज माइन। देन व्हाट डिड एकता आस्क? शी आस्क्ड फॉर स्टोरी बुक, सो शी माइट नॉट हैव अंडरस्टूड। क्या कह रही है? बॉक्स के बारे में पूछा था अभी, स्टोरी बुक, तो उसको समझ में नहीं आया होगा। So when she didn't understand, what did she use? She used the word pardon. Pardon का क्या अर्थ है बच्चों? बोलिए बोलिए मुझे। वेरी गुड। हाँ बच्चों, बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। तो पार्डन मतलब प्लीज मुझे वापस बताइए, आप क्या पूछ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बोलने के बदले आप सिर्फ पार्डन कह सकते हैं। So instead of setting such a long sentence, I didn't understand, can you please repeat after? So what is this? इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय आप सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, which is a magic word, which is pardon. Okay kids? So what एकता says again, तो pardon पूछा गया, तो अगर आपसे कहीं कोई कहे pardon कहे, तो आप क्या बोलेंगे? आप वापस दोहराएंगे। You will repeat the what you said. So what does Ekta do? Ekta will repeat this. Would you please show me your story book? So when she asks, Mithi says, pardon. Ekta repeats. जो उसने कहा था वापस दोहरा रही है, क्योंकि मीठी ने पार्डन कहा। मीठी ने एक मैजिक वर्ड यूज किया। ऐसे नहीं बोला मीठी ने, she didn't say ah I didn't understand, she didn't say like that, she asked pardon। तो पार्डन का मतलब मैं सुनना चाहती हूँ बट मुझे समझ में नहीं आया, तो प्यार से बोल रही है मीठी। शी यूज्ड अ मैजिक वर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिडंट अंडरस्टैंड। ऐसे चिड़चिड़ होके बिना, without being angry, irritated or upset, Mithi was very kind and polite to use a magic word pardon. And Ekta, on listening to the magic word, she says, would you please show me your story book?
Okay, so here we end today's class and we have a little more conversation to go through, which we will be doing in the next class. So, what would you do by the next class? You will learn up all the 6 magic words: excuse me, sorry, thank you, please, pardon, and welcome, kids. ओके, आपने चैट बॉक्स में पार्डन का मतलब पूछा था, मैंने वापस बता दिया। पार्डन का अर्थ है बच्चों यहाँ पे वापस दोहराने की, दोबारा कहने का अनुरोध। अगर मैंने कोई गलती कर दी, मुझे समझ में नहीं आया, इफ अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं और मुझे वो बात समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपसे बोलूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप वापस दोहराइए। तो इतना बड़ा सा लंबा सा खींच के बोलने के बदले आप बहुत छोटे फॉर्म में, बहुत एक शब्द में आप पूछ सकते हैं कि आप वापस दोहरा पाएंगे क्या नहीं। इतना लंबा बोलने के बदले आप सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक मैजिक वर्ड है। वह वर्ड कौन सा है? पार्डन। आपको अभी समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, सो यू लर्न द वर्ड पार्डन। प्लीज प्रैक्टिस द स्पेलिंग so you learn up the spellings as well. Okay kids, so we will meet up in the next class. Until then, जय हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत।